गुरुर्ब्रह्मा ओम सद्गुरुदेवाय नमः। आज का यह सर्वोत्तम पावन तिथि गुरु व शिष्य के अलौकिक व अटूट संबंध की सर्वोपरि पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा। यहाँ संपूर्ण देश विदेश से जुड़े प्रियजनों व विश्व भर में 93 सेंटर्स से सभी गुरु बंधुओं व अतिथियों का हमारा प्रेम भरा नमस्कार और सद्गुरु मंगेशदा क्रिया योग फाउंडेशन की ओर से इस मधुर शाम में हार्दिक हार्दिक सुस्वागतम। इस मंगल कामना के साथ कि पार ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु जी की दिव्य कृपा हम सभी पर पूर्णिमा की चांद की तरह निरंतर बरसती रहे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखंड मंडलाकारम सर्वज्ञ सर्व संपन्न सर्व मंगलकारी पारदर्शी सच्चिदानंद घन परम सद्गुरु महाअवतार बाबा जी की उनके परम शिष्य भक्त सद्गुरु जी के श्री हस्तों से मंगल पूजन। देखो संतो दिन सुहाना आ गया, खुद खुदा रहमत बरसाने आ गया। हे रहमतों के सागर सभी के अत्यंत प्रिय सद्गुरु जी, आपको दशों दिशाओं से हृदयपूर्वक वंदन व तहे दिल से आभार मानते हुए यहाँ उपस्थित आपके सभी श्रद्धालु भक्तों की ओर से इस दिव्यतम गुरु पूर्णिमा की मधुरतम शाम में सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सद्गुरु जी, आपके असंख्य चाहने वाले अनगिनत भक्तगण न केवल भारत में अपितु विदेशों से कई प्रेमी जनों ने हमसे यहाँ जुड़े हुए हैं और अपना संदेश व शुभकामनाएं पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ऑर्गेनाइजर से निवेदन करेंगे कि हम सभी के लिए इन संदेशों की क्लिप्स दिखा दें। जहाँ बैठूं वहाँ छाया छाया जहाँ बैठूं वहाँ छाया सोही तो साहेब मारी नजरा आया। हरिओम दादा। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हरिओम। गुरु कृपा परम बलम। Dada has taught us the meaning of unconditional love and has taken us into his fold. Dada, please accept our salutations to you on this pious day of Guru Purnima and also every day. This is C.V. Gopal and family from Sydney, Australia. Hariom Sadhguruji. Hariom Dada. On this auspicious occasion of Guru Purnima, on behalf of all of your disciples in Singapore, we offer our humble salutations and pranams at your lotus feet. Thank you for your blessings, your guidance on this holy path of Kriya Yoga. Hariom Dada, thank you for being with us. You are the guiding light in our lives. Thank you for all your blessings, teachings and guidance and continuous support. Thank you. Hariom Dada. Hariom. Hariom everybody on today's pious day of Guru Purnima. Sadar pranams to Sadhguruji. Wishing everybody from Singapore a happy Guru Purnima.
Happy Guru Purnima Dada, Hari Om. Thank you so much for being my Guru, our Guru. Thank you so much for being there always, your blessings, your guidance, and also being a friend to us. You are so approachable. Thank you so much for that. Hari Om Dada. I want to thank you from all of us here in Singapore for being our Guru, our mentor. Thank you for everything and guiding us all this way. Happy Guru Purnima to you. Hari Om. Pranam Dada, Hari Om. Pranam Dada, Hari Om. Thank you for being with us, and may your presence and your blessings always be on our head. Thank you so much. Thank you. Hari Om Dada. On the occasion of Guru Purnima, I would like to thank you for initiating all of me and Ruchi on the path of Kriya Yoga. Please continue to be our guiding light. We are blessed to have you in our life. Thank you. A Guru dispels darkness from our lives, lights our lives with his knowledge, and leads the path to liberation. Thank you for being such a Guru Dada. Always seeking your grace and your blessings. Wishing you a very, very happy Guru Purnima. Hari Om Dada, happy Guru Purnima, wishing you a wonderful year ahead. Hari Om Dada, happy Guru Purnima, thank you for your blessings. I'm at home safely now. Hari Om Dada, seeking your blessings and happy Guru Purnima. Hari Om. I want to wish you a wonderful happy Guru Purnima, my dear Sadguru Dev, Yogiraj Rishi Mangesh Ji. Thank you for your wonderful divine blessings, love, compassion, and light. Happy Guru Purnima. Happy Guru Purnima, Sadhguru, from François Yogesh, France. Hari Om. On this auspicious day, Varun and me from London take this opportunity to thank you, Guruji, and bow down to you for imparting us with your immense knowledge and guiding us with your teachings on Kriya Yoga. You encourage us to be always positive and spread unconditional love and unconditional forgiveness. That sky is the limit. We, from London Center of Sadhguru Mangesh Da Kriya Yoga Foundation, wish you a very, very happy Guru Purnima. Hari Om. Hari Om Sadhguruji, Pranam, wishing you a very happy Guru Purnima. This Guru Purnima, it will be exactly 8 years since I got my Kriya Diksha, and it has truly been a special journey. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Happy Guru Purnima Dada, Padma, Sudhakar from St. Catharines, Canada. Thank you. Hari Om. Hari Om Sadhguruji, pranams at your divine feet. Thank you for guiding us on this holy, pious Guru Purnima day. Pranams at your lotus feet on this auspicious day of Guru Purnima. Thank you for always being with us. हम न्यूयॉर्क से गुरु पूर्णिमा के दिन अवसर पर दादा को प्रणाम करते हैं और उनके आशीर्वाद हम पर बने रहे, हमेशा उसकी प्रार्थना करते हैं. परम पूज्य सद्गुरु जी, गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मेरे कोटि कोटि प्रणाम. मैं शारीरिक रूप से आपसे कोसों दूर रहती हूँ, मगर ऑनलाइन क्लास में जब मैं आपको देखती हूँ तो मेरा मन कृतज्ञता से भर जाता है और एक ही विचार मन में उठता है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो. Hari Om. Koti Koti Pranam Dada on this auspicious day of Guru Purnima. I seek your blessings for the strength in these times and ahead. Hari Om. My name is Amit and I live in San Jose, California. Dada, he is wishing you a very happy Guru Purnima with utmost gratitude and joy. Thank you so much for everything you do for us. Hari Om. On the occasion of Guru Purnima, I would like to wish Dada and all the members of the Sadhguru Mangesh Da Kriya Yoga Foundation a very happy Guru Purnima day. Dada Pranam, I am Bulbul from New Jersey. I'm wishing Dada a very happy Guru Purnima. Hari Om Dada, happy Guru Purnima. Thank you for your blessings and teachings.
Dada, your teachings are an ocean of wisdom. With every passing day, we understand a bit more of what you're trying to teach us. Thank you for everything. Happy Guru Purnima. Hariom Dada. Wishing you all a very happy Guru Purnima from Goa. Hariom. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव. On this auspicious occasion of Guru Purnima, Hyderabad Center offers its pranams and gratitude to you, Sadhguruji. Hari Om. Hari Om. We're very lucky, Sadhguruji, to have you in our lives, for leading us from darkness to light, from ignorance to bliss. Happy Guru Purnima to Sadhguruji. As you know, this is a very auspicious occasion in the life of any disciple, and I'm very grateful to have met my Guru at a time when I really needed guidance in my life. Hari Om. शांति का पढ़ाया पाठ, अज्ञानता का मिटाया अंधकार, गुरु ने सिखाया हमें नफरत पर विजय है प्यार. सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं. On behalf of Pune Center, wishing Sadhguruji Dr. Mangesh Da a very happy Guru Purnima from all of us. Seek your blessings, Guruji. Happy Guru Purnima, Sadhguruji. Thank you. Hari Om Dada. We wish you a very happy Guru Purnima. Hari Om Gurudeva. Pranams at your divine feet. On behalf of Warangal and Karimnagar centers, today on this auspicious day, we want to be grateful as you accepted us as your disciples in this divine path of Kriya Yoga. Hari Om Sadhguruji. हरि ओम. गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर भारत के रहने वाले हमारे सारे मित्र एवं दुनिया के कई देशों से जो हमारे क्रियावान है, सबकी तरफ से सद्गुरु जी आपको हमारा साष्टांग प्रणाम. हैप्पी गुरु पूर्णिमा दादा. तुम जो नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है. हम सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि क्रिया दीक्षा का पावन प्रसाद व क्रिया योग की अनुपम साधना के अलावा सद्गुरु जी नियमित रूप से योग व ध्यान धारणा मेडिटेशन सेशंस के साथ साथ जो ले रहे हैं, अपने कई भक्तों को कल्चरल एक्टिविटीज़ में तालीम देते आ रहे हैं, उनके हुनर को निखारते आ रहे हैं. तो भक्तिमय निर्मिति के लिए चंद क्रियाबन अपने भावपूर्ण भजन के पुष्प सद्गुरु जी को समर्पित करेंगे. Guru
काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, लोभ चोर संघात, बड़ा विकट यम घात।
बड़ा विकट यम घाट। गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। भ्रांति की पहाड़ी नदियाँ बीच में, भ्रांति की पहाड़ी भ्रांति की पहाड़ी नदियाँ बीच में, अहंकार की लाट, अहंकार की लाट, बड़ा कठिन यम घाट, बड़ा कठिन यम घाट। गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। सद्गुरु जी जिन्होंने अपने परम सद्गुरु महाअवतार बाबा जी का आदेश पाकर पिछले 25 वर्षों से अधिक यह अनुपम क्रिया दीक्षा व प्राचीन क्रिया योग की साधना का प्रचार विश्व भर में करते आ रहे हैं और पिछले 50 वर्षों से अधिक स्वयं अपनी योग साधना, उसके निरंतर अभ्यास व संशोधन में अपना जीवन अमूलक करते हुए शरण में आए सभी साधकों का जीवन सार्थक करते आ रहे हैं। तो आइए इस जीवन यात्रा की कुछ झलकियाँ हम यहाँ पर देखें। पचास साल से भी ज्यादा की योग साधना, वो भी क्रिया योग, ढेर सारे सामाजिक कार्यों और संसार में सबके साथ ज्ञान और प्यार बांटने की उदारता, इसका जीवंत उदाहरण है सद्गुरु योगीराज डॉक्टर मंगेश दा। सद्गुरु योगीराज डॉक्टर मंगेश दा के बारे में कुछ कहना यानी सूरज को रोशनी दिखाने योग्य है, क्योंकि योग की दुनिया में योगीराज डॉक्टर मंगेश दा एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने नाम के साथ जुड़े योगी राज की उपाधि को सच में सार्थक साबित कर दिखाया है। If I can, then definitely we can, and if we can, then the whole world can. They can learn what is unconditional love, what is unconditional forgiveness. यही गुरु सबको कह रहा है। 50 से भी अधिक सालों से वे स्वयं योगाभ्यास कर रहे हैं और साथ में हजारों लोगों को वो योग सिखा रहे हैं। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। चाहे बच्चे हों, जवान हो या फिर बड़े, हर उम्र के लोग सद्गुरु योगीराज डॉक्टर मंगेश दा की निश्रा में योग सीख रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और कई लोग तो ये प्रतियोगिता जीत कर भी आते हैं। हर उम्र के लोग सद्गुरु जी के मार्गदर्शन में योगाभ्यास की मदद से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ये शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर में रहने वाली आत्मा ईश्वर का अंश है। स्वस्थ शरीर ही आत्मा को स्वस्थ रख सकता है। ये बात बचपन में ही जान गए थे योगीराज डॉक्टर मंगेश दा। इसीलिए दहिसर के एक साधारण से परिवार में अपने माता पिता के 9वें संतान के रूप में जन्मे मंगेश दा ने बचपन में ही खेलकूद के साथ साथ
योगाभ्यास में पारंगत होने का अपना लक्ष्य बना लिया। योग और अध्यात्म के साथ साथ युवान मंगेशदा को खेल जगत, पर्वतारोहण और कराटे में बहुत रुचि थी। इन सारे क्षेत्रों में उन्होंने अव्वल स्थान प्राप्त किए। रंगमंच, संगीत और नृत्य में भी उन्होंने अपनी निपुणता दिखाई। अध्यात्म की ओर उनकी गहरी रुचि के कारण योग से उनका लगाव सहज बनता गया। सद्गुरु जी ने योग की प्राथमिक शिक्षा पुणे के गुणावणी महाराज से प्राप्त की और यहाँ अध्यात्म में आगे बढ़ने की जो ललक थी वही उन्हें हिमालय की ओर ले गई, परम गुरु श्री श्री महाअवतार बाबा जी की ओर। श्री श्री महाअवतार बाबा जी अनंत काल से, युगों युगों से क्रिया योग के माध्यम से मानवों की आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति के लिए अविरत रूप से क्रियाशील हैं। सद्गुरु योगीराज डॉक्टर मंगेशदा बाबा जी के ऐसे ही प्रखर शिष्य हैं। हिमालय में परम गुरु के सानिध्य में करीब 9 साल तक क्रिया योग का अभ्यास किया। क्रिया योग बहुत ही सामान्य परंतु संपूर्ण वैज्ञानिक और सबसे तेज योग प्रक्रिया है। ऐसे ही क्रिया योग के विशेष ज्ञान के धनी हैं सद्गुरु योगीराज डॉक्टर मंगेशदा। हिमालय में बाबा जी के सानिध्य में ही सद्गुरु मंगेशदा ने परम ज्ञान की प्राप्ति की और परम गुरु की ही आज्ञा पर वे हमारे बीच आए। संसार में रहकर भी कैसे क्रिया योग का अभ्यास किया जा सकता है, ये सिखाने के लिए और क्रिया योग के प्रचार प्रसार के लिए सद्गुरु मंगेशदा ने सद्गुरु मंगेशदा क्रिया योग फाउंडेशन की स्थापना की। जिसके देश और दुनिया भर में स्थित 93 सेंटर्स क्रिया योग के प्रचार प्रसार के साथ सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों को जोड़ने की और साथ रखकर चलने की विशेष कला सद्गुरु जी के पास है। इसलिए फाउंडेशन के साथ सभी धर्म और जाति के लोग जुड़े हैं और एक रूप होकर कार्य कर रहे हैं। अपने 50 साल से भी अधिक समय के योगाभ्यास के दौरान सद्गुरु जी स्वयं शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम रहे ही साथ दूसरों को भी ये कला सिखाते रहे। सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए और स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हो, इस उद्देश्य से सद्गुरु मंगेशदा क्रिया योग फाउंडेशन द्वारा समय समय पर विविध जगहों पर योग शिविरों का आयोजन होता है। जेल के कैदियों से लेकर पुलिस कर्मचारियों तक, नेता से लेकर अभिनेता तक और कई सामान्य लोग ऐसे शिविरों का हिस्सा बनकर योगाभ्यास का महत्व जान चुके हैं। हमारी भविष्य की पीढ़ी को बचपन से ही स्वस्थ और आनंदमय जीवन जीने की कला सिखाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। इसीलिए फाउंडेशन द्वारा कई स्कूलों में भी योग प्रशिक्षण दिया जाता है। सद्गुरु योगीराज डॉक्टर मंगेशदा आध्यात्मिक गुरुओं में थोड़े अलग हैं। वे अपने अनुयायियों को निस्वार्थ प्रेम और क्षमाशीलता की भावना के साथ साथ सामाजिक कार्यों में प्रवृत्त रहकर समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए वो भी सिखाते हैं। सद्गुरु मंगेशदा क्रिया योग फाउंडेशन क्रिया योग के प्रचार प्रसार के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है। फाउंडेशन द्वारा समय समय पर सफाई अभियान चलता रहता है, जिसमें सबसे बड़ा अभियान था मुंबई से कैलाश मानसरोवर तक का सफाई अभियान। सद्गुरु मंगेशदा के मार्गदर्शन में कुछ साल पहले आई प्लेज वी प्लेज के नाम से नेत्रदान अभियान शुरू हुआ था, जिसके तहत अब तक करीब 58 लाख लोग नेत्रदान के लिए तैयार हुए हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। मंगेशदा स्वयं कराटे में एशियन चैंपियनशिप जीतकर गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। अपनी ये कला वो महिलाओं को स्वयं सुरक्षा के लिए भी सिखाते हैं। 3, 4, 5 सद्गुरु योगीराज डॉक्टर मंगेशदा INO के पैटर्न भी हैं। सामाजिक कार्य, खेलकूद, संगीत और कला के माध्यम से सद्गुरु जी योग के विविध तरीके हमें सिखाते हैं। सद्गुरु डॉक्टर मंगेशदा को कई बार अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा क्रिया योग पर चर्चा के लिए बुलाया जाता है। पोर्टुगल में हुए विश्व योग दिवस के कार्यक्रम में वो प्रथम वक्ता के रूप में आमंत्रित हुए थे, तो हैदराबाद में हुए प्रथम वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी में वो प्रमुख वक्ता थे। अपने 50 साल से भी ज्यादा योगाभ्यास के अनुभव के कारण ही सद्गुरु डॉक्टर मंगेशदा योग के पर्याय बन चुके हैं। इसलिए उन्हें कई संस्थाओं द्वारा सम्मान और अवार्ड्स मिल चुके हैं।
वैसे तो योग हमेशा से हमारी प्राचीन धरोहर रही है। समय के साथ साथ योग विश्व प्रख्यात तो हुआ ही है, साथ ही साथ इसके महत्व को जानने के बाद आज योग लोगों की दिनचर्या का अभिन्न अंग भी बन गया है। लेकिन योग के प्रचार प्रसार में विश्व प्रसिद्ध योग गुरुओं का भी योगदान रहा है, जैसे सद्गुरु योगीराज डॉक्टर मंगेश दा। उन्होंने देश और दुनिया भर में हजारों लोगों को योग के लिए प्रेरित किया है। I'm lucky कि मैं भी आपको के साथ ज्वाइन हो गया हूँ। सद्गुरु योगीराज डॉक्टर मंगेश दा योगीराज इसलिए हैं क्योंकि न सिर्फ उन्होंने 50 से भी अधिक सालों तक योगाभ्यास किया है, बल्कि वो योगीराज इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने देश और दुनिया भर में हजारों लोगों को योग के लिए प्रेरित किया है और समाज सेवा के कार्य करते हुए उन्होंने सच्चे कर्मयोगी बनकर लोगों को भी इन कार्यों में प्रवृत्त होने के लिए उत्साहित किया है। गुरु तत्व आप सब में है। जो भी लोग यहाँ पर बैठे, हर एक के अंदर एक गुरु तत्व है। बस उसकी रोशनी जो है हर एक के साथ देना। प्रेम अगर मुझसे मिला है, इसे दुगना करके दूसरों को देना, ये मेरे शुभाशीर्वाद। योग के ऐसे गुरु मौजूदा दौर में हमारे बीच उपस्थित हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज के इस पावन गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे बहुत बहुत शुभाशीर्वाद सारे मेरे डिसाइपल्स, वेल विशर्स। कभी भी ख्याल रहे, आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। हर बार आपके हर सांस के साथ, हर कदम के साथ मैं आपके साथ में हूं। आपके आगे भी मैं हूं, आपके पीछे भी मैं हूं। तो मेरे शुभाशीर्वाद। आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन हम लॉन्च करने जा रहे हैं 4 चीजें। मैंने पहले कहा कि संकल्प का होना बहुत जरूरी है, तो बहुत सोच के बाद मैं एक विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहा हूं, क्रिया संस्कार साधना। 12 एपिसोड का यह कार्यक्रम 12 जुलाई से शुरू होगा। हर संडे 5 से 6, 7 साल के बच्चे की उम्र और उसके ऊपर 7 साल से ऊपर के उम्र के बच्चे इसमें भाग लेंगे। ये सारे अलग अलग संस्कार, जिसके अंदर अलग अलग विधियां किस ढंग से की जाती है, शरीर को कैसे और ताकतवर किया जाता है, इसका यह कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद हम आ रहे हैं हमारा न्यूज़लेटर लेकर। हमारा न्यूज़लेटर जो है, ये क्या क्या घटनाएं होती है, इसका एक वृत्तांत रहेगा हर महीने आपके सामने। हमारा अवेकनिंग मैगजीन, इंटरनेशनल मैगजीन, साल में एक बार आता है, लेकिन इस न्यूज़लेटर के जरिए हर महीने आपके साथ हम आ जाएंगे मिलने के लिए। हमारे जो समाचार है आप तक पहुंचेंगे। उसके बाद
मुझे पता है कोरोना जो है ये युद्ध थोड़ा बड़ा है, तो मास्क का होना बहुत जरूरी है। इस मास्क के जरिए हमारा हाथ जो है ये मुंह, नाक यहाँ तक लगता नहीं है। बैक्टीरिया को हम दूर रख सकते हैं, और जिसके लिए अपनी फाउंडेशन का हमारा हाउ टू फाइट इस स्लोगन के साथ मास्क हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और इसके साथ हमारी फाउंडेशन की नई वेबसाइट आपको मिलने के लिए तैयार हो गई है, एक नए अंदाज में आपके सामने आ रही है। तो इसका भी हम स्वागत करते हैं, नई वेबसाइट। मुझे आशा है इन चारों चीजों का आप स्वागत करेंगे। हरिओम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्बंधु गुरुर्देव गुरुर्समा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिन सारे विश्व के सारे गुरु, परम गुरु, सदगुरु सबको हमारा मनपूर्वक प्रणाम। महर्षि व्यास का आज जन्मदिन, जिनके नाम से यह गुरु पूर्णिमा पूरे विश्व में मनाई जा रही है। इस साल का महत्व कुछ अलग है। इस साल सारे के सारे लोग अपने ही घर में बंदीवान हैं। कोरोना की इस महामारी ने सबको इस तरह से रोक दिया है
कि हम सब अपने ही घर में यह गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, लेकिन हमारा उत्साह कम नहीं है, सारे शिष्यों का उत्साह कम नहीं है, और ज्यादातर पूरे विश्व में यह संदेश, यह पैगाम और बेहतरीन ढंग से पहुंचाने का यह प्रयास। मूल स्वरूप में जब भक्ति योग आ जाता है, गुरु शिष्य नाता आ जाता है, और वहां पर हर बार हर गुरु शिष्य नाते में एक पावित्र्य, एक ऐसी सोच जो तत्वों से तत्वों को मिलाने वाली गुरु तत्व की सोच। हजारों सालों की यह परंपरा, जहां श्री राम जी के भी गुरु, जहां श्री कृष्ण जी के भी गुरु, हर एक तपस्वी के गुरु, और गुरु के बिना सारा ज्ञान अधूरा। हमारे परम गुरु महाअवतार बाबा जी, हमारे सदगुरु गुलोनी महाराज, और सबसे ज्यादा हमारे पहले गुरु, हमारे माता पिता, इन्हें हमारा तहे दिल से प्रणाम। आप ही की वजह से आज हम आपके साथ यह संवाद करने जा रहे हैं। संवाद में इसीलिए कहता हूं क्योंकि संवाद शब्द दूसरे के बगैर अधूरा है। या तो इंसान खुद के साथ संवाद करता है, या तो दूसरों के साथ करता है। बचपन से हमने भागवत सुना। श्री कृष्ण जब अर्जुन को बोध कर रहे थे, यह 18 अध्याय, यह गुरु शिष्य परंपरा, भले कितना भी श्री कृष्ण कहे कि अर्जुन तू मेरा सखा, क्योंकि हर गुरु शिष्य को कहता है तू मेरा सखा, फिर भी श्री कृष्ण उसके लिए गुरुवर्य है। अर्जुन ने सारा जो भी सीखना या धनुर्विद्या सीखी द्रोणाचार्य से, ये उनके गुरु है, पर आध्यात्मिक गुरु जो थे वो श्री कृष्ण ही थे। शिव जी ने पार्वती को बोध किया, उनका नाता। उसके बाद में जो परंपरा चल रही है, ये हजारों सालों की परंपरा, और इसका आज पावन दिन गुरु पूर्णिमा। कई मर्तबा ये हो जाता है कि शिष्य हमेशा चाहता है कि आज इस संसार में कोरोना की महामारी में मेरा कोई तो एक त्राता है, कोई तो मुझे संभालने वाला है, यह उसका विश्वास होता है। हर बार लोग कहते हैं कि जब गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, ये तीनों गुण जिसके पास है वो है सद्गुरु। और उनके पास अगर इंसान या शिष्य लीन हो जाता है, शरण आ जाता है, तो वो जो मिलता है शायद विष्णु, महान शिव जी भी नहीं दे सकेंगे, वो गुरु दे सकता है। और ये आशीर्वाद है गुरु के लिए, उन तत्वों के लिए जिस परंपरा में गुरु शिष्य नाता तैयार हुआ है। हजारों कहानियां हैं गुरु शिष्य के इस परंपरा में। जब कहीं कुछ नहीं मिलता है और जब शिष्य शरणागत होकर गुरु से मांगता है, तो गुरु अपने गुरु को, वो उसके गुरु को, और वहां तक कि जो चीज नामुमकिन है वो भी मिल जाती है। आज के इस महामारी में शायद हम सब, पूरा विश्व यही सोच रहा है कि कब सारे लोग बाहर जाए, एक दूसरे को मिले, अपना आनंद जो है ये बाहर मनाए। सारे बच्चे रुके हुए हैं, कभी हम अपने दोस्तों को मिले, मैदान पे जाए, खेले कूदे, लेकिन फिर भी किसी ने हमें आज रोक दिया है। और इसका नाम अगर कोरोना है, तो मुझे लगता है ये एक मानसिक द्वंद्व चल रहा है, और इस मानसिक द्वंद्व का एक परमोच्च क्षण जो है वो है इंतजार, संयम। कभी कभी थोड़ा संयम का होना बहुत जरूरी होता है।
हर एक जन अपने जिंदगी में कुछ संकल्प रखते हैं। हमारा शास्त्र, हमारी जो विधियां जो होती है, इसका कुछ न कुछ महत्व होता है और इस संकल्प में नित्य, नैमित्तिक, निष्काम, प्रासंगिक, ये 4 महत्व के जो संकल्प है, इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है प्रापंचिक और उसके बाद आध्यात्मिक। संकल्प इसीलिए किए जाते हैं कि हमें जीने के लिए कुछ उद्दिष्ट होनी चाहिए। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, खाना खाया, शाम हो गई, सो गए, दिन ढल गया, यह हो नहीं सकता है। तो संकल्प करके जो इंसान जीता है वो सही मायने में अपनी एक मंजिल तक पहुंच जाता है। और यहाँ पर नित्य संकल्प कौन से है कि सुबह उठने के बाद क्या करना है, नैमित्तिक क्या होता है, निष्काम क्या होता है। मतलब बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान अपने आप को एक सांचे में ऐसे डालता है कि जहां पर वो समझता है कि नहीं, यहां तक मुझे पहुंचना है। हिमालय की चोटी पे जाते वक्त जब एवरेस्ट पे भी पहुंचना है तो भी सीधे एवरेस्ट पे नहीं जाते हैं, उसकी अलग अलग मंजिलें होती है, जिसको लोग कहते हैं बेस कैंप। इस बेस कैंप पे आ जाए, उसके बाद में दूसरे पे जाए, फिर तीसरे पे जाए, ऐसे हम अलग अलग स्टेजेस पे पहुंच जाते हैं और बाद में अंतिम मंजिल होती है वो है एवरेस्ट। उसी तरह ये संकल्प के कुछ लेवल्स होते हैं। आध्यात्मिक, हम जब कहते हैं कि आध्यात्मिक ऊंचाई, अगर किसी का भी जीने का एक फाउंडेशन अगर आध्यात्मिक है, तो कोई भी महामारी आ जाए, कोई भी हमारे पास संकट आ जाए, कोरोना आ जाए, हम उसका जरूर मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे गुरुजी कहते हैं कि हर इंसान को अपनी इस जीवन यात्रा में बार बार खुद की आत्मशुद्धि करना जरूरी होता है। आत्मशुद्धि का मतलब होता है सिर्फ नहाने की शुद्धि नहीं हो रही है। तो आत्मशुद्धि में अलग अलग पहलू आते हैं जो हमारे शास्त्र में लिखे, और वो शास्त्र शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका शास्त्रीय कुछ महत्व है जो हर इंसान को समझ में आ जाना चाहिए। और इस आत्मशुद्धि में आ जाते सबसे पहली शुद्धि आती है मनोबल की शुद्धि, मन की शुद्धि। मन का महत्व बहुत बड़ा है। हमारे ही मन के अंदर सारे शैतानी विचार भी आ जाते हैं, हमारे ही मन के अंदर सारे अच्छे भाव भी आ जाते हैं, परोपकार के विचार आ जाते हैं, दूसरे के मदद के विचार आ जाते हैं। तो मन बड़ा विचित्र है और इस मन को तैयार करने के लिए इस मन के ऊपर संस्कार का होना बहुत जरूरी है। और ये क्रिया योग सिखाता है कि अपने मन के ऊपर जब संस्कार करने हैं तो आत्मा को जगा, और इस आत्मा की शुद्धि है वो है आत्मशुद्धि। इस आत्मशुद्धि के जरिए हम इस मन को ऐसे तैयार करें कि ये हमारा मन इतना सशक्त, सुदृढ़ हो जाए कि उसके बाद में कोई भी नकारात्मक भाव हमें स्पर्श भी नहीं करेगी। आत्मशुद्धि में आ जाते हैं योगाभ्यास। योग का मतलब ही है जोड़ना, जोड़ने की कला। शिव, शरीर, मन, इन्हें जोड़ना, लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे आत्मा को जागृत करना जरूरी है। आत्मा मन को, मन की रचना को तैयार करती है, उसके विचारों को एक दिशा देती है। मन जो होता है ये शरीर को दिशा देता है, उसको संभालता है, और ये अटूट नाता है इस योग का। इस योग में आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है, हमें भगवान ने जो भी महत्व की चीजें दी है, जीवनावश्यक वस्तु दी है, उसमें आता है अन्न। अन्न का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अन्न बिना खाए भी इंसान कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, इसीलिए जल का होना जरूरी है। जल वो भी हम शायद 1 दिन, 2 दिन रुक सकते हैं, 3 दिन रुक सकते हैं, लेकिन हवा जो है ये हमें चाहिए। तो सबसे पहला महत्व जो है ये है हमारे हवा का। और इस हवा को शरीर के अंदर जब हमें भेजना है तो उसके ऊपर जो एक व्यायाम किया जाता है, उसकी सोच होती है, वो है प्राणायाम। इनफैक्ट प्राणायाम योग मार्ग का हरिद्वार है। जैसे 4 धाम यात्रा पे निकलते हैं, गंगोत्री जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं,
कहीं कहीं इस जगह पर जाने की शुरुआत जो मानी जा गई है वो है हरिद्वार। हरिद्वार तक पहुंचना है, उसके बाद में यमुनोत्री का रास्ता आता है, गंगोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। उसी तरह हमारे योग मार्ग का हरिद्वार जो है ये है प्राणायाम। और प्राणायाम करते वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि जो हवा शरीर के अंदर हमारी जा रही, जो वायु जा रहा है, तो शरीर का सबसे हल्का सच्छिद्र अवयव कौन सा है? तो ये है हमारे फेफड़े। ये हमारे फेफड़े सबसे हल्के हैं वजन में। तो हवा का सबसे पहला स्पर्श इन्हीं के साथ होता है। उसके बाद में अशुद्ध रक्त जो है ये शुद्ध होता है, संपूर्ण शरीर में चेतना आती है, हमारे जो विचार है, हमारा जो दिमाग है, वहां पर हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है। शरीर के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दोष है, ये निकले जाते हैं। और ये प्रक्रिया जो है इस प्राणायाम की वजह से ही इंसान का मन परिवर्तित होता है। तो प्राणायाम का मुख्य अंग है अशुद्ध भाग, अशुद्ध जो संचार है शरीर का, कार्बन डाइऑक्साइड सब निकालना है, उसकी शुद्धि करना। लेकिन सही ढंग से प्राणायाम जब किया जाता है तो यही प्राणायाम जो है मन को स्थिर करता है। मतलब मन को अगर तैयार करना है तो प्राणायाम का होना जरूरी है। प्राणायाम अगर सही करते हैं तो उसके बाद में मन जो है वो स्थिर होता है, मन के विचार जो है ये स्थिर होता है, हमारा कंसंट्रेशन वो अच्छे से इंप्रूव होने लग जाता है। तो ये तीनों चीज अगर मिल गई तो उसके बाद में जो विचार है, दूसरे के प्रति जो भावना है, ये सारी हमारी बदली होती है। अलग अलग प्रकार है प्राणायाम के, अलग अलग प्रकार है, और यहाँ ये सिखाने के लिए सही गुरु की जरूरत है। समझ के प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जीवन मान जो है ये अभी बढ़ने लगा है। उसका जो क्रम है, 1 मिनट में कितनी सांसें लेते हैं, उसके बाद धीमे 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 करते करते जब हम एक शैलो ब्रीथ पे आने लग जाते हैं तो मन हल्का होता है। सारे जो दोष होते हैं, सारा तनाव जो होता है, ये सारा कहीं से चला जाता है और इंसान के अंदर जो एक ऊर्जा तैयार होती है, यही ऊर्जा आज हमें चाहिए। इस कोरोना को लड़ने के लिए यही ऊर्जा काम आने वाली है। और इसीलिए योगाभ्यास का हमारा महाद्वार, हमारा हरिद्वार जो है ये है प्राणायाम। इसके बाद शुद्धि की प्रक्रिया जैसे जैसे करेंगे, देखो कितना हमारे बुजुर्गों ने काफी शास्त्र में लिखा है, लेकिन हम इतने मॉडर्न बन गए तो हम भूलने लगे। We forgotten all the things, we thought that oh this is all something, कुछ पुराने कीड़े हैं, कुछ लिखा है, इनको कुछ समझता नहीं। मॉडर्न हमारे शास्त्र में लिखा है पानी पीना, लेकिन पानी कैसे पिया जाता है? तो पानी पीते वक्त एक साथ 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पीना और चम्मच से पानी पीना, यह है आचमन का महत्व। हमारा अगर हाथ हथेली हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे 5 तीर्थ है, मातृ तीर्थ, पितृ तीर्थ से लेकर से 5 तीर्थ मिलकर ये गोकर्ण मुद्रा बनती है। तो शास्त्र में लिखा, 1 चम्मच में पानी लिया, वो रखा, उसके बाद मंत्र बोला, उसके बाद हमने उसका प्रश्न किया, तो शारीरिक ऊर्जा और हमारा स्वास्थ्य सबसे ज्यादा बढ़ता है। और ये प्रयोग से सिद्ध हुआ है, मॉडर्न आज जमाने में सिद्ध हुआ है कि चम्मच पानी देना। रुग्ण होता है उसको भी चम्मच पानी पिलाते, थोड़ा पिलाते हैं। तो ये आचमन का क्या महत्व? आचमन करने से आत्म शुद्धि, हमारी आंतरिक शुद्धि, हमारा तेज, हमारा सारा जो एक संचार जो होता है शरीर के अंदर एनर्जी का, ये बढ़ने लग जाता है। और इसके लिए व्याधि नाशक अगर कुछ है तो ये है आचमन। फिर आचमन ने क्या चीज डाली है वो अलग बात है कि उसके अंदर तुलसी के पत्ते कैसे डालने, उसके बाद में और शुद्धि कैसे की जाते, ये अलग। लेकिन आचमन एक महत्व का भाग है हमारी प्राणायाम, हमारी योग साधना में, हमारी आत्मशुद्धि में। और ये सारे संस्कार है, ये सारे हमारे क्रिया के संस्कार है जो हमारे लिए जरूरी है आज के दौर पे कि हम दोबारा इसके ऊपर एक खोज रखें, संशोधन रखें और उस भाव से, शास्त्रीय भाव से
इसे अपनाएं। इसके बाद में आ जाता है हमारी ध्यान धारणा। हालांकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा के बाद में जो ध्यान और धारणा, इनका सीधा संबंध है समाधि की तरफ। ध्यान का मतलब ही हो जाता है कि मन जो है, जो चंचल मन है, इस चंचल मन के ऊपर नियंत्रण अगर रखना है तो इस मन को किसी एक जगह पे स्थिर करते हैं। आध्यात्म में जब ध्यान लगाना है, ध्यान करना है, इसके अलग अलग विधि है। अलग अलग विधि हमने सुना है कि रावण ने भी तपस्या की, उसने भी ध्यान किया था। शिव जी को वश करने के काफी लोगों ने ध्यान किया था, तप किए थे। प्रहलाद जी ने तप किए थे, ध्रुव तारा तप किए थे। तो ध्यान का मतलब हो जाता है किसी एक विशिष्ट जगह पर हमारे चित्त को एकाग्र कर। ये एकाग्र भाव जो होता है मन का, इसके अंदर उसकी सारी शक्ति जो है ये बढ़ जाती है। आज के मॉडर्न युग में ऐसे कहते हैं कि एक छोटा सा पार्टिकल एटम, इसकी ताकत एटम बॉम्ब की अगर है तो जितना सूक्ष्म लेवल पे हमारे मन को हम एकत्रित करते हैं तो हमारी इंटेंसिटी इतने लेवल पे बढ़ती है तो कुंडली का संचार जो है शरीर के अंदर बहने लग जाता है। नियंत्रण का होना बहुत जरूरी होता है। मन को नियंत्रित अगर करना है तो सबसे पहले अपने प्राण के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। प्राण को नियंत्रित करने के लिए हमारा ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए और उसके बाद में ये सारा शक्ति का संचार एक एक जगह पे, छोटी छोटी नाखून तक हमारी शक्ति का संचार बढ़ जाता है। शुद्धि की प्रक्रिया होती है और इसी के लिए अपनी आदतें हमें आज के दौर पे बदलनी है। आज की गुरु पूर्णिमा को अगर कुछ बड़ा संकल्प रखना है तो ऐसी कौन सी आदतें हमारी है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। देखिए, कोरोना आ गया, आना था, उसका टाइम फिक्स था। 2019 में कोरोना आ गया, कब तक रुकेगा भविष्य में झांकते नहीं। कोरोना ने क्या दिया, इसका सकारात्मक भाव अगर देखना है तो मेरे ख्याल से जब भी ऐसी नकारात्मक बात आती है तब कुछ सकारात्मक बातें भी बहुत अच्छे से सामने लोगों के आती है। और इसके लिए हम देखेंगे कि हम परिवार से कितना बिछड़ गए थे। एक ही घर के अंदर लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे थे, अभी कम से कम मिलजुल हो गई, लोग एक दूसरे को देख रहे, बातें होने लगी। उसके बाद कोरोना ने क्या दिया, कोरोना ने एक डर की भावना दी। जब डर की भावना दी तो उसी के साथ में ये मृत्यु का जो भय है तो सारे सजग हो गए। मुझे मरना नहीं है, बस किसी भी हालत में मुझे मरना नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद अलग अलग संदेश आ गए। उसके बाद लोगों ने कहा नहीं, खुद को जीवित रखना है तो अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ। क्या इसके पहले कभी इम्यून सिस्टम के बारे में सोचा नहीं था, सुना नहीं था? इम्यून सिस्टम के बारे में हमने स्कूल से पढ़ा था, सीखा था, लेकिन जब जान की बाजी आ गई, मरने वाले हैं और कहते कि बस अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ, अब सब लोग आने लगे। क्योंकि सारे फॉरेन के लोगों ने भी बोलना शुरू किया कि योग की वजह से, योग साधना की वजह से ये इम्यून सिस्टम सबसे बेहतरीन होती है। आयुष मिनिस्ट्री ने कहा योग के लिए आपके लिए पर्याय नहीं है, आप योग करो। उसके बाद में प्राणायाम की शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद ढूंढना शुरू हो गया किससे सीखना है। तो मेरे ख्याल से एक सकारात्मक जो एक हमारा कदम जो है ये इस कोरोना की वजह से हुआ। उसकी वजह से लोग खुद के लिए समय देने लगे। शरीर पता चला शरीर है, उसके अंदर कुछ ऐसे प्राण है, सांसें ले रहे तो कैसी लेनी चाहिए, उसके बाद नियंत्रण कैसे किए जाते हैं, ध्यान कैसे किया जाता है, मन शांति कैसी लगती है, हल्कापन कैसे लगता है। तो ये स्वभाव जो है हमारा, ये हमारा ध्यान धारणा से बदल रहा है। उसके बाद इस स्वभाव के जो दोष है हमारे, 24 घंटे हमारे पास है, जिसको हम काल चक्र का एक दिन समझते हैं। इस 24 दिन, 24 घंटे, एक महीना, एक साल, इसे हमें कैसे जीना है।
हमारा कितना समय जो है ये गलत चीजों में चला जाता है। एक मोबाइल आधुनिक विश्व की बहुत बड़ी देन है। आज इंसान को एक जगह से पूरे विश्व में किसी को भी संधान करना है तो ये मोबाइल के जरिए हम कर सकते हैं। ये उसका अच्छा गुण है। इसका दुर्गुण ये है, इसका दुर्गुण ये है कि जब इसके जो व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, ये व्हाट्सएप मैसेजेस कभी कभी सेकंड से 1 मिनट बनता है, सेकंड से 1 मिनट बनता है, उस मिनट से घंटे होते हैं, उस घंटों का दिन होता है। कितना समय अपना इसमें चला जाता है। मोबाइल पे मैसेज आता है, इंसान उसमें देखता है क्या है। अब जब देखता है, पढ़ता है, अच्छा ये जो मैसेज है इसके बारे में सोचता है, फिर उसको प्रतिक्रिया देता है, जो भी इमोजी से लेके जो भी। तो मैं 10 सेकंड पकड़ता हूँ या 15 सेकंड पकड़ता हूँ या टाइप करने का कुछ समय पकड़ता हूँ। एक इंसान को दिन भर में लगभग कितने हजार मैसेज आते होंगे, मतलब 1000 बार वो उस मोबाइल को ढूंढता है, आंखें रखता है, ढूंढता है क्या मैसेज है, उसके विचार शुरू होते हैं। तो टोटल समय उसके बाद में उसके ऊपर अगर फोन करके बात करनी है तो दिन भर में उस मोबाइल से कितने फोन जाते हैं। एक थोड़ा सा अभ्यास अगर हम करेंगे तो मोबाइल के सारी अगर लिस्ट देखेंगे कि आज एक दिन में मुझे 30 कॉल आ गए, 40 कॉल आ गए, 20 कॉल आ गए, उसका एक ड्यूरेशन लिखा हुआ रहता है। संभाषण 2 मिनट का था, 4 मिनट का था, 10 मिनट का, कभी कभी 40-40, 50 मिनट लोग बोलते रहते हैं। वो अगर मैं इकट्ठा करता हूं तो एक दिन में हमारे लगभग 3 से 4 घंटे उस मोबाइल के जरिए हम गंवा देते हैं। और 3-4 घंटे में हम और क्या कर सकते हैं, खुद को सशक्त कैसे करते हैं, ज्ञान कैसे पाते हैं, संवाद ही करना है तो कैसे संवाद करना है, खुद को सक्षम कैसे करना है, बहुत सारी चीजें। जीवन कम पड़ता है, इंसान को जीवन कम पड़ता है, क्योंकि अगर ओवरऑल विचार अगर हम करेंगे तो 1 साल के अंदर जितने घंटे हमारे एक दिन में गए, 30 दिन के कितने गए, 12 महीने के कितने गए, तो हमारी उम्र जो है कितनी हमने इस मोबाइल के अनवांटेड चीजों में गंवाई, ये भी जरूरी है। सकारात्मक भाव हमारे अपनी आदतों से बढ़ते हैं। अच्छी चीजें तभी आ जाती है जब घर का वातावरण हमारा जो है ये सकारात्मक रहे। स्वच्छता सबसे बड़ी बात। जिस घर के अंदर स्वच्छता है उस घर के अंदर की सारी शांति है अपनी जगह पर है। जिस घर के अंदर गंदगी है वहां की सारी एनर्जी गलत लेवल पे चली जाती है। वही भाव जो है वो इंसान लेता है। सबसे बड़ा दुर्गुण अगर इंसान का कुछ है तो है आलसीपन। कितनी बार हमने काफी कहानियां सुनी है, आलसीपन की वजह से बहुत अच्छी, किसी के पास बहुत अच्छे गुण हैं, उस इंसान ने गंवाए। तो हमारे गुरुजी सिखाते हैं, और ये सारा श्रेय उन्हीं को है जिन्होंने एक मिट्टी को तैयार किया, एक गोले को तैयार किया, बताया कि नहीं, ये अपना गुस्सा उसको सकारात्मक भाव में कैसे लिया जाता है। अपना भय जो इंसान के पास है उसको कहाँ सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, और अपना दुख जो है उस इंसान को खुद को जीवित रखने के लिए, इमोशनल लेवल पे लोगों के साथ मेलजोल करने के लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमने गुरुजी से सीखा। इस पूरी आदतों के दौरान हमें पता चलेगा हर इंसान जो अपने बाजू में है ये हमारे लिए अनमोल है। हर इंसान, आज कोरोना में तो जरूरी है, हर इंसान का मोल जो है बहुत बड़ा है, और जो इंसान अपने करीब है उसी की वजह से हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, उससे सीखते हैं, कभी कभी उसको भी थोड़ा बहुत उपदेश भी करते हैं।
तो दूसरा इंसान से लेके तीसरा इंसान करते करते ये सोसाइटी है, ये समाज है, ये पूरा विश्व है। मुझे याद है मैंने पहली बार भगवत गीता, हालांकि कितनी बार मैंने पढ़ी, हर बार मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं कुछ भी नहीं सीखा और सीखना चाहिए। उसके अंदर का एक भाग है, एक विशेष युद्ध के पहले श्री कृष्ण कहते हैं मानसिक तैयारी कैसी होती है। वो भी इंसान की तरह है, वो भी इमोशनल है। मतलब सारे गुण श्री कृष्ण के दिखाए गए एक सादे सामान्य इंसान के है। इतना बड़ा भगवान, लेकिन वो भी सामान्य इंसान की तरह जीता है, रोता है, कहता है कितना बड़ा विनाश अब होने वाला है। किसी को अंदाजा नहीं होगा इतना बड़ा विनाश अभी होने वाला है। मतलब उसे पता है सारी चीजें क्या होने वाली, और ये सारा विनाश उसके सामने है। लाखों लोग वहां पर मरने वाले, जानवर मरने वाले, हाथी घोड़े मरने वाले हैं, और फिर भी वो कहता है ये सारा विनाश मैं ही करने वाला। कोई भी गलत चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं रखता है। आज के दौर पे जरा से भी गलत चीजें हो गई, इंसान कहता है मैंने नहीं किया, ये इसने किया। लेकिन श्री कृष्ण भगवान सिखाते हैं ये सारी चीजें मेरी वजह से होने वाली है, मैं ही करने वाला हूं, जिम्मेदार भी मैं हूं। तू मैं हम सब एक ही है। यहाँ पर मुझे गुलोनी महाराज जी का पहली बार मैंने सुना था, वो शब्द याद आया, अहम ब्रह्मास्मि। शायद उम्र मेरी कम थी तो उतना मेरे समझ में नहीं आया था कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं चराचर का, हर चीज का मैं हिस्सा। हर चीज का अगर मैं हिस्सा हूं तो जो भी अप्रिय घटना हो रही है ये भी मैं इसका हिस्सा हूं, जो भी अच्छी चीज बनती है इसका भी मैं ही हिस्सा हूं। ज्योत से ज्योत जलाओ, सदगुरु यह हम बोलते हैं, लेकिन उस ज्योति का मतलब होता है एक ज्योत से दूसरी ज्योत, दूसरी से तीसरी ज्योत, मिलते मिलते ये सारा जो एक महाज्योत बन जाती है। ये हम हमारे सारे जो आत्मा और परमात्मा का मिलाप है। आध्यात्मिक लेवल पे हम सारी कहानियां सुनते हैं, लेकिन कहानियां का मर्म क्या होता है? हर कहानियां का एक बोध होता है। वो बोध आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमें ये रखना है। कोरोना आया है, शायद कोरोना कुछ दिन के बाद और छोटा हो जाएगा और माइक्रो हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी ऊंचाई को बढ़ाने वाले, बहुत बड़े लेवल पे हमारी ऊंचाई अभी बढ़ने वाली है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। इस कोरोना की वजह से हमें बहुत बड़ा लाभ हो गया। मैं जानता हूं एक छोटे लेवल पे सोचना ठीक है कि किस लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है सबको मिलना चाहिए, लेकिन टोटल कितने लोग? 5 लाख लोगों को आज भारत में कोरोना हुआ है, तो उसमें से मरने वालों की संख्या 20,000 है। या अगर मैं यहाँ की महाराष्ट्र की बात करता हूं यहाँ से, तो टोटल अगर 2.5 लाख पीपल उनको अगर कोरोना हो गया है तो मरने वालों की संख्या 2,000 है। तो पूरे साल भर का अगर या मैं न्योता लेता हूं, पूरे साल भर में सारे एक्सीडेंट, सारे अलग डिजीज, इसमें मरने वालों की संख्या तो लाखों की है। लेकिन फिर भी हमें इसीलिए उसके लिए ज्यादा चेतावनी मिल रही है। सबसे डेंजरस पार्ट है क्योंकि ये संपर्क की वजह से होने वाला है। और जब इंसान का संपर्क अब ऐसे हो गया है कि ये पता नहीं है सामने वाला जो इंसान है ये कौन सा इंसान है, ये कोरोना वाला है। कहते हैं कि 50% चांसेस विद एवरीबॉडी नाउ आउटसाइड, तो उसमें से कौन आ जाएगा कैसे सब, तो हम सावध हो गए। लेकिन हम ये भी तो समझे कितने लोग उतावले हो गए दूसरों को मिलने के लिए, गले लगने के लिए। इतने दिन आजू बाजू में थे, महत्व नहीं था,
लेकिन अभी वो दूसरे इंसान का महत्व वो भी तो पता चला। सामने तो है, स्क्रीन के ऊपर आ रहे, लेकिन वो फिजिकली मिल नहीं रहा। फोन पे संवाद हो रही है लेकिन मिल नहीं रहा है। यही महत्व की बात मैं कह रहा था, वो दूसरे इंसान के लिए कैसा चित्र रहेगा। कुछ महीने के बाद में सारे लोग बाहर जाने लगेंगे। जो चेहरा हम दिखाते आ रहे हैं, ये मैं हूं, दिस इज माई आइडेंटिटी, दिस फेस मीन दिस पर्सन। अब वो फेस अभी छुपने वाला है मास्क की वजह से। दिखेंगी शायद आंखें दिखाई देगी, सिर्फ आंखें देख के पहचानना है कि अरे अरे अच्छा तू मिला क्या, अच्छा ये वो है। सारे जो फोटो है निकालने के, सेल्फी है, ये कम होने वाले, क्योंकि अभी फोटो किसकी निकाले। शुद्ध हवा है बाहर, सारा पोल्यूशन बंद हो गया है, लेकिन सांस लेने के लिए मास्क पहन के सांस दीर्घ श्वसन करना है। चित्र पूरा अलग दिखने वाला है। लोग फासले रखेंगे। जनसंख्या जो बढ़ गई है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एक हवा तैयार होने वाली है, एक डिस्टेंस तैयार होने वाला है। और इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ा संकल्प हमें करना है, तू और मैं, हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। अहम ब्रह्मास्मि। चलो थियोरिटिकली बोलते हैं, अनुभव बाद में करते हैं, लेकिन थियोरिटिकली सही हम सब एक हैं। सबके दुख में हम हैं, सबके सुख में हम हैं। आज नहीं तो कल ये कोरोना के लिए लस मिल जाएगी, हम और सशक्त बन जाएंगे। क्यों गले नहीं लगेंगे? जरूर लगेंगे, जरूर लगेंगे एक दूसरे के गले। दिल से दिल मिलाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा संयम अभी के लिए, थोड़ा संयम अभी के लिए। युद्ध शुरू है, महायुद्ध शुरू है। सब लोग लड़ रहे हैं। एक जगह पे निसर्ग है, एक जगह पे कोरोना जैसे विषाणु है, जिसका जीवन ही नहीं है। ऐसा विषाणु जो बिना जीवन से भी हमारे जीवन में आता है और हमारे ही जीवन को एक ऐसे जगह पे लेके जाता है और बताता है यहाँ तेरी मृत्यु है, यहाँ तेरा जीवन है। और फिर भी हमें जीना है, क्योंकि अभी हम रिश्ते नाते संभालने वाले। भविष्य में हर रिश्ता महत्व का होगा। इसके बाद में मन में अलग अलग विचार आ जाएंगे। जब ऐसी चीजें होती है कोरोना, तभी हर घर में, हर मन में गलत विचार आती है। कुछ देशों में आती है, कुछ युद्ध की भावना हो जाती है कि बस इस जरिए और थोड़ा प्रदेश चाहिए, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारी टेरिटरी छोटी है और बढ़ाते हैं, अपनी शक्ति को, पावर को बढ़ा के दूसरे देश को डोमिनेट करते हैं। और यहां सिर्फ एक ही दवा है, प्रेम की। युद्ध से सबका नुकसान है। लड़ना चाहिए, लड़ना ही चाहिए। अपने संरक्षण के लिए हमें लड़ना ही चाहिए। वही बात श्री कृष्ण ने कही थी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म के ऊपर जब भी कोई भी चीज गलत होती है, लड़ना ही चाहिए। लेकिन उसके बाद में जो होगा वो कुरुक्षेत्र के संहार के बाद की स्थिति होगी। वही स्थिति होगी जो कलिंग के बाद में अशोका की हुई थी, और वही स्थिति आप मैं हम सबके होने वाली। पृथ्वी पे लोग ही नहीं रहे तो जीवन का क्या मूल्य? जीवन का मूल्य तभी होता है जब जीवन को हम संभालते हैं, संवरते हैं। जीवन का मूल्य तभी आता है जब उसके अंदर एक आनंद होता है, चैतन्य की भावना होती है। जीवन का मूल्य तभी होता है जब प्रेम भाव से हम एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, मिलते हैं। इस प्रेम में कहीं पर भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, छोटा प्रेम नहीं होना चाहिए, कंडीशनल प्रेम नहीं होना चाहिए। अनकंडीशनल अगर प्रेम लाना है तो हमें भूलना है कि पास्ट में किसने हमारा क्या बुरा किया। Forgetting is difficult, but giving unconditional forgiveness is definitely possible. And when we want to lead
a healthy life ahead, then we should contemplate. हमारे ऊपर संस्कार हमें करने हैं. हमारा जो शास्त्र है, भारतवर्ष का जो अद्भुत ज्ञान का भंडार है, इसे हमें दोबारा समझना है. बहुत जल्द मैं आ रहा हूं एक संकल्पना के साथ. मेरा संकल्प है क्रिया संस्कार साधना. क्रिया संस्कार साधना जो है एक तपस्या है. आज से ही शुरू करेंगे. छोटे बच्चे से लेके सबके लिए हमारे शास्त्र ने कितनी अद्भुत हमें देन दी है. इसको कैसे समझते हैं, कैसे अपनाते हैं. पहली बार जब इस सूर्य को मैंने अर्घ्य दिया था, और तभी मुझे पता चला कि जल तत्व से अग्नि तत्व सूरज की किरणें मेरे अनाहत चक्र पे कैसे प्रवेश कर रही है. हम जब गले में जनेऊ डालते हैं, जनेऊ का मतलब क्या है? आचमन के बारे में अभी अभी मैंने कहा. प्राणायाम का महत्व क्या होता है, 5 उंगलियों का महत्व क्या होता है. शरीर के अंदर सारा संचार अगर हमें बरकरार रखना है, लोग जिसको कहते हैं सिद्धि मिल गई है, तो सिद्धि और कुछ नहीं है, यही संस्कार का अभ्यास है. और यही है हमारा क्रिया संस्कार साधना है. इसके जरिए आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को हमें तेजोमय बनाना है. हमारा तेज दूसरे को देना है. पूरा घर तेजोमय करना है. हमारे राष्ट्र को तेजोमय करना है. विश्व में शांति तभी आएगी जब शुरुआत खुद से शुरू होगी. जब खुद से शुरू करेंगे और सोचेंगे कि हमारे इस जीवन का मूल्य क्या है, कितने साल जिए और जीवन कैसे जिए, ये देखना है. महर्षि व्यास जी को जब गणेश जी ने कहा था, मैं तुम्हारा महाभारत लिखूंगा लेकिन मैं बीच में रुकूंगा नहीं, तो जो अखंड धारा जो व्यास जी के मुंह से निकली और श्री गणेश जी ने लिखते 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 एक महाकाव्य तैयार किया, महाभारत. उसी तरह हर एक के अंदर बसा है गणेश, हर एक के अंदर बसा है व्यास जी, हर एक के अंदर बसा है श्री कृष्ण, हर एक के अंदर बसा है अर्जुन. बस उसको मिलने की बारी आनी है, उसको समझना है, जिसके लिए थोड़ा समय खुद के लिए, कोरोना कितना भी भयावह हो, इंसान से डरावना और कोई नहीं, ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते गए. हमें इसे झूठा करना है. आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कहना है, जो भी आपने सुना वो सही इतना नहीं था. इंसान से ज्यादा प्रेममय और कोई नहीं. और ये भाव के साथ आज इस गुरु पूर्णिमा को हम सबको वंदन करते हैं. हमारे माता पिता, हमारे सदगुरु, जिनके बदौलत हम जो कुछ नहीं थे, सारा धूल उन्होंने साफ किया, हमें नहलवाया, हमें शुचिरभूत किया और एक नई दिशा के साथ दोबारा भेज दिया आप हम सबको मिलने के लिए. उस महान गुरु जी को मेरे तहे दिल से प्रणाम. आप सबको प्रणाम, क्योंकि आप ही के अंदर मेरा विठ्ठल, आप ही के अंदर मेरा विठ्ठल. इसलिए आप सारे विठ्ठल, सारे गुरु जी को मेरा प्रणाम. और इसी के साथ में हमारे साथ में सारा निसर्ग, जो निसर्ग के हमारे पहले आया है, उसको प्रणाम, क्योंकि हर निसर्ग के अंदर, हर पौधे के अंदर उसी गुरु तत्व को हमारा प्रणाम. यह सारी चीजें योगमय, अद्भुत, अद्वितीय, ऐसी सुंदर सृष्टि में हमने जीवन लिया. हमने अपनी पहली सांस ली, जीवन क्रम शुरू हुआ, आप सब मिले उत्साह के साथ. आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जल्द मिलने के लिए आएंगे आप सबके साथ में, योग साधना, ध्यान धारणा के साथ क्रिया साधना, जो एक संस्कार कैसे, इसके साथ मिलने के लिए. तब तक के लिए हरिओम हरिओम हरिओम.
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नौकर रख लो जी बाबा जी मुझे नौकर रख लो जी नौकर रख लो जी बाबा जी मुझे नौकर रख लो जी नौकर रख लो जी बाबा जी मुझे नौकर रख लो जी नौकर रख लो जी बाबा जी मुझे नौकर रख लो जी नौकर रख लो जी बाबा जी मुझे नौकर रख लो जी नौकर रख लो जी मामा जी मुझे नौकर रख लो जी नौकर रख लो जी बाबा जी मुझे नौकर रख लो जी मैं हूँ तेरे दर का भिखारी तू मेरा अन्नदाता मैं हूँ तेरे दर का भिखारी तू मेरा अन्नदाता मैं हूँ तेरे दर का भिखारी तू मेरा अन्नदाता मैं हूँ तेरे दर का भिखारी तू मेरा अन्नदाता जो भी देना चाहे वो दे दे बाबा थोड़ा हो या ज्यादा जो भी देना चाहे वो दे दे बाबा थोड़ा हो या ज्यादा बस नौकर रख लो जी बाबा जी मुझे नौकर रख लो जी नौकर रख लो जी बाबा जी मुझे नौकर रख लो जी सोना न मांगू चांदी न मांगू न मांगू हीरे मोती सोना न मांगू चांदी न मांगू न मांगू हीरे मोती सोना न मांगू चांदी न मांगू न मांगू हीरे मोती सोना न मांगू चांदी न मांगू न मांगू हीरे मोती मैं तो मांगू बस मेरे भोले तेरे चरणों की भक्ति मैं तो मांगू बस मेरे भोले तेरे चरणों की भक्ति बस नौकर रख लो जी बाबा जी मुझे नौकर रख लो जी नौकर रख लो जी बाबा जी मुझे नौकर रख